I, Ankur Raj, welcome you all to our lecture series of class 6, and this lecture series is based on the chapter number 1 for class 6 computer science, and the main topic is classification of computers. And now we will be studying the first classification, that is microcomputer. Students, this particular topic is common for our CBSE and also CAI and IGCSE board. So prominently for CBSE and also for IGCSE board, CAI IGCSE boards. So whatever schools would be covering, so it would be helpful for all that. Also so for some of the IB schools and all. So let's start without any delay. And so again, let me introduce again that what book we are referring. The name of the book is Click Start, and this Click Start, as I have said, it is also helpful for the CAI and IGCSE board, where CAI stands for Cambridge Assessment and International Education. Okay, so the book we are referring, although in India so many publication companies are publishing it, but this is the sample book which I would be referring, okay, to teach is this, we can say like e-book is there, and the name of the book is Click Start for the grade 6 or level 6, and helpful for CBSE, IGCSE board, and this is the international edition and you can say the third edition, and we have the digital access for this book. Okay, now let's move towards our introduction, learning objective. Okay, we would be covering, we have already till now we have covered, and the chapter is going on, students. We can say the chapter number 1 is going on right now, whose name is Know Your Computer. We have covered early calculating devices, we have covered our evolution of computers, and now we have started the classification of computers, and in the classification of computer, our first classification is microcomputer. Okay, students, so now Know Your Computer. Okay, introduction, Abacus, Napier's bones, we have studied Pascal line, difference engine, analytical engine, and in evolution of computers we have covered first generation vacuum tube, okay, second generation about transistors, third generation about ICs, integrated circuits, fourth generation about microprocessors, and fifth generation about AI. Now from here the classification of computer that we will study today. So what is the classification? Because there's so many computers, and students, there's also some of the demands of so many students that, so please, if possible, if sometimes in Hindi, okay, then I would be fulfilling this demand also. So हमारे जो कंप्यूटर्स हैं उन्हें क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है कुछ साइज़ के बेसिस पर, एंड वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ आवर साइज़, ये क्या साइज़ रहेंगे, है ना, क्या उनका साइज़ रहेगा, छोटा बड़ा, स्पीड, व्हाट इज़ द स्पीड, है ना, हाई स्पीड कंप्यूटर्स, मीडियम स्पीड, तो स्पीड और साइज़ के बेसिस पे कंप्यूटर्स को क्लासिफाई किया गया है. It has been classified into 4 types of computers: microcomputer, mini computer, mainframe computer, and supercomputers. So today we will be focusing upon the microcomputers. So what are microcomputers? See, you can see the 5th generation computers based upon the AI. Okay, the microcomputers. Micro means what? See, there are so many times there would be confusion between the micro thing and the mini thing. Okay, बट माइक्रो इज़ मच स्मॉलर देन मिनी, है ना. माइक्रो बहुत ज़्यादा ही छोटा होता है मिनी से भी, तो मिनी से भी छोटा अगर कोई कंप्यूटर होता है तो वो है हमारा माइक्रो कंप्यूटर. ऑल्दो वी हैव अर्लियर सेड ओनली दैट आवर कंप्यूटर्स इज़ क्लासिफाइड ऑन द साइज, है ना, एंड नॉट ओनली साइज एंड ऑल्सो ऑन द स्पीड. सो ऑन द साइज एंड स्पीड, this is our first classification, that is microcomputer. So microcomputer is very very much small, we could say, है ना. So microcomputer was a commonly used term for personal computers
means we say that I have bought a PC. PC means what? P stands for personal and C stands for computer. Means whatever person, जो भी लोग कहते हैं कि मैंने PC खरीदा है, I have bought a PC, तो PC क्या है हमारा? पर्सनल कंप्यूटर क्या है जो आप घर में प्रैक्टिकल्स के लिए घर में इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारा एक तरह का माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है, जहाँ पर असेंबल्ड रहते हैं क्या क्या है ना, उसके अंदर CPU रहते हैं, है ना, कंप्यूटर मेमोरी रहती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, है ना, रैम एंड रोम, एंड ऑल्सो इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ सो मेनी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस भी रहते हैं उनके साथ अटैच। बेसिकली हमें क्या दिखता है? यही दिखता है ना, यही हमें दिखता है। देखिए हमारा डेस्कटॉप PC है, PC स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर, ये हमारा मॉनिटर है, ये हमारा कीबोर्ड, माउस, CPU, ओके, एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरीज। सो it is said that whatever PC is there, it is an example of what? Microcomputer, okay, personal computer. So it is assembled by the CPU, computer memory and various input and output devices such as mouse, है ना, इन बहुत सारे input and output devices से ये बना होता है, एंड असेंबल किया रहता है, तब जाके हमारा एक PC बनकर तैयार होता है। और PC हमारा क्या है? एंड PC is what? PC is an example of microcomputer। और बहुत सारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जैसे हमारे इनपुट डिवाइसेस में माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, आउटपुट डिवाइसेस में हमारा मॉनिटर हुआ, एंड CPU इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके। नाउ इट इज़ सेड दैट ओनली 1 person कैन यूज़ इट एट अ टाइम। तो हमारा इस PC को एक लोग ही यूज़ कर सकते हैं एक बार में। ओनली 1 person कैन यूज़ इट एट अ टाइम, एंड इट इज़ मच स्लोअर, एंड ऑल्सो वी कैन से दैट इट इज़, है ना, द स्पीड इज़ स्लो। And also the storage capacity, if you would be talking about the storage capacity, it is also has less storage, है ना, आप स्टोर जो कर सकते हैं वो थोड़ा कम, मीन्स आपका स्पीड भी कम है ना, साइज़ आप देख ही रहे हो, और स्टोरेज भी कम है, इट इज़ ऑल्सो लेस देन, बट और ये किससे कंपेरिजन में बात हो रही है कि स्पीड इसका कम है एंड स्टोरेज इसकी भी कम है? इन द कंपेरिजन ऑफ विथ मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, है ना, जो इनकी फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं, है ना, मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, उनके कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारा माइक्रो कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा, इनका स्पीड कम है, और इनके पास स्टोरेज कैपेसिटी, जो स्टोरिंग कैपेसिटी है डेटा के लिए, वो भी कम है इन कंपैरिजन विद द मिनी एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अब बात आती है कि माइक्रो कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन आवर क्लासरूम्स, क्लास में, है ना, लैब्स में, है ना, हमारे घर में, बैंक्स में, यूनिवर्सिटीज़, ओके। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कौन कौन से कंप्यूटर्स जो इन रियल टाइम, इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो हम लोग देखते हैं, व्हाट एवर कंप्यूटर्स वी सी इन डे टू डे लाइफ एंड ओके हियर एंड देयर वेयरएवर वी सी, ओके। तो वो कौन कौन से कंप्यूटर्स हैं जो कि हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं, अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स, व्हाट एवर कंप्यूटर्स वी शुड से that can be categorized as a microcomputer। तो वो हमारे हैं माइक्रो डेस्कटॉप PC, लैपटॉप, टैबलेट एंड स्मार्टफोन, दैट्स इट। डेस्कटॉप PC आपने देखा, आप देखे हैं, कहाँ देखा आपने? क्लासरूम्स में, लैब्स में, घर में, बैंक्स में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो डेस्कटॉप PC भी हमारा क्या है? डेस्कटॉप PC इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप ऑल्सो इज़ अ माइक्रो कंप्यूटर, टैबलेट एंड स्मार्टफोन। डेस्कटॉप PC, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन। लैपटॉप आप यूज़ करते हो, है ना, वी यूज़ टू टेक इट हियर एंड देयर, है ना, वेयर रिमोटली वी कैन यूज़। सो लैपटॉप भी हमारा माइक्रो कंप्यूटर है। टैबलेट, बड़ा सा मोबाइल फ़ोन, है ना, अ मोबाइल कंप्यूटर, इट इज़ ऑल्सो टैबलेट, इट इज़ ऑल्सो अ माइक्रो कंप्यूटर। स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन, इट इज़ ऑल्सो अ माइक्रो कंप्यूटर। सो डेस्कटॉप PC, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, एवरीथिंग इज़ माइक्रो कंप्यूटर। सुनो, तो लैपटॉप के बारे में क्या अगर हम लोग पढ़ें तो लैपटॉप इस क्या है? लैपटॉप हमारा क्या है? लैपटॉप इज़ अ पोर्टेबल माइक्रो कंप्यूटर, मीन्स एक पोर्टेबल माइक्रो कंप्यूटर। पोर्टेबल मीन्स इट इज़, वी कैन से इट इज़ कैन बी रिमोटली यूज्ड, है ना, मतलब वी कैन से लाइक वी कैन से, मतलब मोबाइल भी बोल सकते हो आप, बट पोर्टेबल ज़्यादा बेस्ट वर्ड रहेगा हमारे लिए कि हमारा एक माइक्रो कंप्यूटर ही है, बट वो एक क्या है, हमारा पोर्टेबल है, मतलब कहीं भी से आप लेकर आ जा सकते हो, आप कहीं भी वर्क कर सकते हो।
है ना। आप यहाँ पर हो, यहाँ पर आपके पास, आप स्कूल में हो, स्कूल में आपके पास लैपटॉप है। आप अपने घर आ गए, आप घर आ गए, आपके पास घर में आपका वही कंप्यूटर है ना। या फिर आप रास्ते में हो, वहाँ पर आपका कंप्यूटर है। आप फ्लाइट से जा रहे हो, आप ट्रेन से जा रहे हो, रास्ते में आपके पास कंप्यूटर है। अब वहाँ चले गए, वहाँ कंप्यूटर है। तो जहाँ इट इज़ पोर्टेबल, है ना। इट इज़ लाइक मूविंग योर्स, इट्स लाइक मूविंग विथ योर सेल्फ, है ना। जहाँ मन वहाँ आप जा रहा है ये। तो आपको यहाँ पे टिपिकली आप क्या दिखता है, आपको ये मॉनिटर, है ना। ये आपको जो पैनल है, इसी के अंदर हमारा CPU भी है, हमारा सिस्टम यूनिट, एंड आपका कीबोर्ड एंड माउस सब इसी के अंदर इंटीग्रेटेड है। तो ये हमारा एक मोटेबल माइक्रो कंप्यूटर है, जिसको कि आप अपने लैप पर, अपने गोद पर रख सकते हैं। और तो ये हमारा एक तरह का माइक्रो कंप्यूटर है। लैपटॉप कंप्यूटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज नोटबुक कंप्यूटर्स। लैपटॉप को आप या फिर आप नोटबुक भी बोल सकते हो। लैपटॉप को आप लैपटॉप कंप्यूटर बोल सकते हैं। वी कैन से लैपटॉप एज ए लैपटॉप कंप्यूटर, एंड ऑल्सो वी कैन से इट एज ए नोटबुक और नोटबुक कंप्यूटर्स। ठीक है। तो ये रहा हमारा सेकेंड, है ना। ये रहा हमारा सेकेंड कैटेगरी में। कौन से कैटेगरी में? इन माइक्रो कंप्यूटर्स। तो फर्स्ट इज डेस्कटॉप PC। तो पहला है हमारा स्टूडेंट्स डेस्कटॉप PC या फिर PC, एंड सेकेंड इज़ आवर लैपटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर या नोटबुक कंप्यूटर्स। नाउ थर्ड अगर बात करें तो टैबलेट। ठीक है। तो टैबलेट इज़ व्हाट? टैबलेट हमारा एक छोटा सा मोबाइल कंप्यूटर, मीन्स जो हमारा एक मोबाइल है, एक लाइक स्मार्टफोन है ना, लाइक वॉट एवर स्मार्टफोन इज़ देयर, बस उसी का एक लार्ज वर्जन, द लार्ज वर्जन, एक बड़ा साइज़ का हमारा जब मोबाइल हो जाता है, एक स्मार्टफोन हो जाता है, तो हमारा एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। और उस कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं? टैबलेट बोलते हैं। तो टैबलेट बोलें या फिर हम लोग मोबाइल कंप्यूटर बोलें। तो टैबलेट मोबाइल कंप्यूटर इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ व्हाट? माइक्रो कंप्यूटर। इसे हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? ये हमें ऑफ़र करता है, इट ऑफर्स अस अ टच स्क्रीन एनवायरनमेंट, है ना। पूरा का पूरा हमारा टच स्क्रीन होता है, टच कर सकते हैं हम लोग, टच किसे हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं, है ना। जो हमारा जो मॉनिटर है वो हमारा टच स्क्रीन की तरह वर्क करता है। इट ऑफर्स अस यूजर्स अ टच स्क्रीन एनवायरनमेंट, सो इट इज़ लाइक मोबाइल कंप्यूटर, एंड दैट मे और मे नॉट बी accompanied बाई अ स्टाइलस। अब अगर बात करें हम लोग स्टूडेंट्स कि ये हमें टच स्क्रीन एनवायरनमेंट देता है, एंड यहाँ पर लिखा है इट मे और मे नॉट बी accompanied बाई स्टाइलस, मीन्स इट कुड हैव और नॉट है, मीन्स अगर उसके पास हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या? accompanied बाई स्टाइलस। तो व्हाट इज़ स्टाइलस? स्टाइलस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो पॉइंटिंग डिवाइस उसके साथ हो भी सकता है या नहीं भी। स्टूडेंट्स जैसे फ़िलहाल मैं अभी आपको बताऊं, तो मैं आपको यहाँ पर मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं जैसे यहाँ टिक कर रहा हूँ इस तरह से। तो ये मैं किस तरह से कर रहा हूँ? मेरे पास एक क्या है? मेरे पास आई हैव अ पेन, ओके, एंड दिस पेन इज़ व्हाट? इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस, है ना। इससे मैं पॉइंट कर पा रहा हूँ, सो इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। सो पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? मेरे पास एक पेन है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज टैबलेट है। तो टैबलेट पेन, है ना। तो टैबलेट पे अगर मैं वर्क कर रहा हूँ, तो टैबलेट के पास अगर पेन दिया है, मतलब एक पॉइंटिंग डिवाइस दिया है पॉइंट करने के लिए, इनपुट करने के। सो दिस इज़ आवर पॉइंटिंग डिवाइस। ये हमारा जो पेन है, टैबलेट के साथ जो पेन है, अगर इट डजेंट मीन्स कि हमारे सारे टैबलेट्स के साथ पेन आता है, बट अगर आपके पास टैबलेट के पास पेन है ना, तो वो पेन क्या है? हमारे पास एक डिवाइस है जो कि एक पॉइंटिंग डिवाइस है, दैट डिवाइस नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। इस तरह कुछ रहता है, और इस तरह से आप किसी चीज़ को पॉइंट, जैसे मुझे यहाँ पॉइंट करना है तो मैंने पॉइंट किया, ये मैंने पॉइंट किया, मैं किससे पॉइंट कर पा रहा हूँ? पॉइंटिंग डिवाइस से। ये हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है, ये हमारा पेन है, ये हमारा टैबलेट का पेन है, ठीक है। सो दिस इज़ नोन एज स्टाइलस। तो वही बता रहा है स्टूडेंट्स कि हमारा जो टच स्क्रीन है इन्वायरमेंट देता है हमारा एक टैबलेट, जिसे हम मोबाइल कंप्यूटर कहते हैं। इट इज़ accompanied बाई स्टाइलस और अ पॉइंटिंग डिवाइस, मीन्स वहाँ पर एक स्टाइलस या एक पॉइंटिंग डिवाइस उसके साथ रहता है, ठीक है। वो रह भी सकता है या नहीं भी रह सकता है। हमारा टैबलेट जो आप बाई करोगे तो उसके साथ एक पेन है ना, वो आपका जो टैबलेट पेन है या पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, वो रह भी सकता है या नहीं भी रह सकता है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ सेइंग दैट इट इज़ accompanied बाई स्टाइलस और अ पॉइंटिंग डिवाइस, और इसी पॉइंटिंग डिवाइस को हम लोग स्टाइलस भी कहते हैं। तो इट कुड बी accompanied और नॉट accompanied, एंड ऑल्सो इट इज़ सेड दैट इट इज़ अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ साइजेस। बहुत तरह के साइजेस में अवेलेबल होता है हमारे पास ये टैबलेट या मोबाइल कंप्यूटर, एंड हैव अ बिल्ट इन वर्चुअल कीबोर्ड, और उसके पास अपना बिल्ट इन एंड वर्चुअल कीबोर्ड होता है। मीन्स ये टैबलेट है, यही आपका ये टैबलेट है, यही आपका मॉनिटर की तरह वर्क कर रहा है ना, और इसी पे आपका
कीबोर्ड भी आ जा रहा है ना, वर्चुअल कीबोर्ड आ जा रहा है जिसे हम लोग बिल्ट इन कीबोर्ड बोल रहे हैं। नाउ लास्ट स्टूडेंट्स, लास्ट जो है हमारा वो है स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन क्या है? स्मार्टफोन तो आप जान ही रहे हो, जिससे कि अभी आप वीडियो देख रहे होगे, जिससे कि आप पढ़ते हो, आप नॉर्मल काम करते हो, कैलकुलेट करते हो, है ना, मोबाइल चलाते हैं, कैमरा चलाते हैं। स्मार्टफोन सबके पास है ना, नॉर्मल फ़ोन्स नहीं बट स्मार्टफोन, जिससे भी फेसबुक, कैमरा एंड ऑल सब यूज़ करते हो। तो मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन क्या है? एक मोबाइल फ़ोन है ना, स्मार्टफोन इज नथिंग बट ए मोबाइल फ़ोन। तो स्मार्टफोन भी हमारा एक तरह कैटेगरी, दिस कम्स ऑल्सो अंडर अ कैटेगरी ऑफ व्हाट, दिस ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, माइक्रो कंप्यूटर। ये भी हमारा एक माइक्रो कंप्यूटर स्मार्टफोन, जिसे कि हम मोबाइल फ़ोन के नाम से भी जानते हैं। एंड दिस इज़ बिल्ट ऑन एन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका जो OS होता है, ये आप आगे पढ़ेंगे। जैसे कंप्यूटर्स को चलाने के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडोज़ है ना। तो विंडोज़ का कौन सा वर्जन, लाइक विंडोज़ 7 है, या विंडोज़ XP इज़ देयर, विंडोज़ 2000 है, विंडोज़ 2000 इज़ देयर, है ना। ये विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 11 सबसे लेटेस्ट वर्जन अभी जो चल रहा है स्टूडेंट्स, विंडोज़ 11 है ना। तो कौन सा तो विंडोज़ हमारा क्या है? OS है ना। विंडोज़ हमारा जो है OS है। OS मीन्स व्हाट? ऑपरेटिंग सिस्टम है। O फॉर ऑपरेटिंग, S फॉर सिस्टम। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो हमारे कंप्यूटर पे है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? बट विंडोज़ का भी अलग अलग वर्जन होता है, लाइक 7 है, XP है, 2000 है, 10 है, 11 है, और भी बहुत सारे होते हैं। लाइक सबसे पुराना था 98 एंड ऑल, ठीक है, विंडोज़ 98। तो जब हमारे पास कंप्यूटर्स में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो इट डजेंट मीन्स कि दैट आवर मोबाइल फ़ोन्स डजेंट हैव अ OS। हमारे मोबाइल फ़ोन्स के पास भी OS होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो मोबाइल फ़ोन मीन्स व्हाट? स्मार्टफोन। तो आवर स्मार्टफोन एंड और वी कैन से मोबाइल फ़ोन ऑल्सो हैज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड दैट ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं हम लोग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर, जैसे नॉर्मल भाषा में तो वी नो डैट कंप्यूटर एक अलग चीज़ है, मोबाइल एक अलग चीज़ है। बट मोबाइल, स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन कम्स अंडर द कैटेगरी। वो किस कैटेगरी में आता है? वो माइक्रो कंप्यूटर कैटेगरी में आता है। बट चूँकि ये मोबाइल का है, तो मोबाइल को हम लोग इसे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। जैसे अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, तो वी कैन से आप एग्जांपल बताएं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा एग्जांपल है एंड्रॉयड। कहते हैं ना, एंड्रॉयड का फ़ोन है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। बट अगर कोई बोलता है कि नहीं हमारे पास एंड्रॉयड का कौन सा, किस कंपनी का है, तो कहेंगे सैमसंग का है, ओप्पो का है, रियलमी का है एंड ऑल। तो वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट कहेंगे हमारे पास एप्पल आईफोन है ना, एप्पल आईफोन है। सो स्टूडेंट्स, एप्पल की बात करें तो एप्पल के जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, वहाँ पर अगर OS की बात करें, ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपके इस लेक्चर के हिसाब से। तो जैसे हमारा जो भी हमारा एंड्रॉयड का फ़ोन कहते हैं हम लोग, तो एंड्रॉयड हमारा क्या है? OS है, सैमसंग का, रियलमी का, ठीक है। ये सारे जो फ़ोन्स हैं, लाइक मोटोरोला, तो लाइक ये सब जो फ़ोन्स हैं, ये सब कंपनीज़ हैं, मोटोरोला, रियलमी, सैमसंग एंड ऑल सब कंपनीज़ हैं। बट उसके अंदर जो OS है, वो कौन सा OS है? वो हमारा एंड्रॉयड है। अब जितने भी एप्पल के फ़ोन हैं, जो अलग अलग वर्जन्स हैं, लाइक एप्पल आईफोन है ना, i4s, i5, एक बात बता रहा हूँ मैं, पुराना है ना। तो लाइक ऑल द एप्पल आईफोन्स, तो उनके पास सारा जो OS होता है, वो कौन सा OS होता है? वो होता है एप्पल iOS होता है ना। एप्पल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इट मीन्स कि मोबाइल के अंदर भी मैं एग्जांपल बताया कि मोबाइल फ़ोन के अंदर या स्मार्टफोन के अंदर, तो मोबाइल फ़ोन एंड स्मार्टफोन आर नथिंग बट अ कैटेगरी ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स, है ना। ये मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन जो है, एक तरह का हमारा क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। तो उसके अंदर एक उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिससे चूँकि मोबाइल है तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जैसे कंप्यूटर्स के अंदर हमारे पास विंडोज़ होता है, विंडोज़ का अलग अलग वर्जन होता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक 7, XP 2000। तो बट मोबाइल का अपना अलग होता है, दो तरह का होता है, एक iOS एंड एक एंड्रॉयड। और भी होता है, अगर आप नोकिया का फ़ोन लेते हो, तो नोकिया के फ़ोन में आपके पास जो OS होता है, वो कौन सा होता है? वो होता है आपके पास विंडोज़ का ही होता है, ठीक है। वो एक विंडोज़ का मोबाइल वर्जन होता है। बट वाट एवर आई एम सेइंग दैट बेसिकली आपके पास नॉर्मल आप देखेंगे लोगों के पास, वो उनके पास जिस भी कंपनी का होगा, एप्पल को छोड़कर, तो बाकी सारे कंपनीज़ का जो मोबाइल होगा, वाट एवर मोबाइल दे वुड बी हैविंग अदर दैन एप्पल, तो उनके पास दे वुड बी हैविंग द अदर मोबाइल फ़ोन्स अदर दैन द एप्पल, दोज मोबाइल फ़ोन्स वुड बी हैविंग एंड्रॉयड एज ऑपरेटिंग सिस्टम। उनके पास जो बाकी मोबाइल फ़ोन्स हैं एप्पल के अलावा, उनके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो एंड्रॉयड होगा।
एंड जिनके पास एप्पल होंगे, कोई भी मोबाइल होगा, कोई वर्जन, वो एप्पल के पास जो OS होगा वो iOS होगा। ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया आपको। मोबाइल फ़ोन इज़ बिल्ट ऑन ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट हैज़ इन्हांस्ड फीचर्स। इन्हांस्ड फीचर्स होते हैं एक ऑर्डिनरी मोबाइल फ़ोन से, नॉर्मल जो कीपैड का फ़ोन होता है ना, उनसे हमारा है ना एक इन्हांस्ड फीचर्स होता है ना, अपग्रेडेड फीचर्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू एन ऑर्डिनरी मोबाइल फ़ोन। अब जैसे एग्जांपल डिजिटल कैमरास, जैसे in earlier days we could be saying students that for cameras, for video games, we would be having different kind of devices. Means suppose I want to play a game, then I would be having a video game. I would be having I want to means like capture photos. I would be having digital cameras. Okay, if I want to like browse something on the net, I would be having computer. सो मीन्स अलग अलग चीज़ों के लिए, हर काम के लिए हमारे पास अलग डिवाइसेस थी, कैमरास थे, है ना, GPS था, हमारे पास वीडियो गेम्स थे, हमारे पास नेट था, के लिए कंप्यूटर था। बट इस सारी चीज़ों को इन्हांस फीचर में नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से, ऑर्डिनरी मोबाइल फ़ोन से, है ना, अदर देन उन्हें अपग्रेड करके हम लोग के सारी चीज़ें इस स्मार्टफोन में आ गई, है ना। हमारे हाथ में एवरी टाइम वी वुड बी हैविंग ए डिवाइस, ओके, एंड we would be having a device and that device is capable of doing each and every task of different devices. मीन्स वो चीज़, वो स्मार्टफोन से सबसे पहला काम तो आप कर सकते हो, फ़ोन लगाते हैं हम लोग और साथ ही साथ उससे हम लोग फ़ोटो भी खींच सकते हैं। डिजिटल कैमरे की ज़रूरत नहीं है, GPS की ज़रूरत नहीं, GPS उसी के अंदर है, रेडियो की ज़रूरत नहीं, रेडियो उसी के अंदर है, हमें वेबकैम की ज़रूरत नहीं, वेबकैम भी उसी के अंदर है ना, हम लोग नेट चलाने की ज़रूरत नहीं है ना, क्या कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं, कंप्यूटर उसी के अंदर है ना, वेब ब्राउज़र्स, वाईफाई, ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज़, है ना, हमें कुछ भी करना है, हम सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आवर स्मार्टफोन। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस लेक्चर। तो आज के लिए इतना ही। और ऐसा नहीं कि जैसे मैंने बताया कि हमारे पास मतलब मोबाइल फ़ोन्स में तो मैंने बताया आपके पास कि आपके जो एप्पल हैं, एप्पल के जितने फ़ोन्स हैं उनके पास जो iOS OS है वो iOS है। जितने भी नॉर्मल फ़ोन्स हैं अदर कंपनीज़ के, उनके पास जो OS है वो हमारा एंड्रॉयड है ना। बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि हमारे पास इट डजंट मीन्स कि हमारे पास कंप्यूटर में ओनली जो OS हैं वो सारे वो ओनली सिर्फ विंडोज़ हैं। हमारे पास उनके लिनक्स भी हैं, है ना, हमारे पास यूनिक्स भी हैं, ठीक है। और विंडोज़ के अलग अलग वर्जन है, दे आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ विंडोज़ लाइक 7, XP, 98, 2000, है ना, 10, 11 एंड ऑल। सो दीज आर द वर्जन्स ऑफ विंडोज़ इज़ एन OS। एंड फिर लिनक्स है, लिनक्स एक OS है, एंड तो लिनक्स के भी अलग अलग हैं। तो लिनक्स फैमिली में अलग अलग OS होते हैं, लाइक वी कैन से लाइक रेड हैट, वी कैन से लाइक उबंटू, है ना, वी कैन से लाइक CentOS एंड ऑल सो मैनी थिंग्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो आज हम लोगों ने वी हैव कवर्ड इन टुडेज लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, एंड दिस क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्पीड। और साइज एंड स्पीड की बेसिस पे हमारे पास 4 तरह के कंप्यूटर्स हो गए, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने माइक्रो कंप्यूटर फोकस किया है, एंड वी हैव गॉन थ्रू सो मैनी एग्जांपल्स लाइक डेस्कटॉप PC, लैपटॉप, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स। Everything comes under the category of microcomputers. In day-to-day life, we see desktop PC and the desktop PC का अदर नाम PC या पर्सनल कंप्यूटर। लैपटॉप है हमारे पास, वो भी एक तरह का हमारा माइक्रो कंप्यूटर है, लैपटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर, और नोटबुक और नोटबुक कंप्यूटर। थर्ड भी हमारा जो है वो टैबलेट, वो भी माइक्रो कंप्यूटर है, टैबलेट और मोबाइल कंप्यूटर। नेक्स्ट इज अवर स्मार्टफोन, अ मोबाइल फ़ोन, इट्स ऑल्सो अ माइक्रो कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही फॉर this much in today's lecture. Now we would be meeting in the next lecture, that would be lecture number 9 obviously for the same class 6, and in the next lecture the classification of computer would be our same parent topic, and classification of computers mein we would be covering our next classification of computer, that would be most probably our, again you could be remembering, it would be what? It would be our mini computer. Okay, here you would be able to see the next, our computer would be mini or mainframe. Yeah, it is a mainframe computer. Okay, it doesn't there's no any problem, either we could be studying a mini or mainframe. But in the next topic, as per our book, this book what we are referring here is the Click Start of class 6 based on the CAI IGC
on the Cambridge University Press, 3rd edition. So we would be covering the next lecture, that is the mainframe computer, students. Okay, that's it from my side. Hope so you would be enjoying the lecture and all, and some of the extra informations, and whatever would be the, if there would be the need of some practicals, we would be covering the practicals also. So need not to panic. Okay, so whatever would be the requirement, if there is a requirement of the hands-on practice and all for the labs, we would be giving, and the arena of virtual labs. Okay, I would be giving you the practical lab demonstration of how we will be using some softwares and all, and of any programs. But till now everything is like theory things. So this much from my side. Hope you would be practicing, you would be reading, making notes, and solving the things, and understanding the topics with the, and if you would be having any confusion, you could be find easy to ask. Okay, students, that's it from my side. Okay, then thank you, class.